آج دنیا جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں مقید ہے۔ بڑی بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں، سنسان پڑی ہیں۔ عبادت گاہیں جو ہیں وہ بھی سنسان پڑی ہیں۔ دنیا میں کورونا کا خوف پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس خوف کی وجہ سے، کورونا کی وحشت کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں۔ لیکن یہ خوف کورونا کا نہیں ہے، یہ خوف اس موت کا ہے جو کورونا کی وجہ سے دنیا میں پھیل رہی ہے، جو لوگوں کا شکار کر رہی ہے۔ تو خوف کورونا کا نہیں ہے، خوف جو ہے وہ موت کا ہے۔ اگر کورونا کی بیماری میں سے موت کے عنصر کو نکال دیا جائے تو کورونا جو ہے یہ عام نزلہ، زکام یا کھانسی رہ جائے گا اور کوئی بھی اس سے نہیں ڈرے گا۔ تو حقیقی خوف جو ہے وہ میرے عزیزو کورونا کا نہیں ہے، بلکہ اس موت کا ہے جو کورونا کے ذریعے سے زندگیوں کا شکار کر رہی ہے۔ کورونا کے لیے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے، اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے ویکسین تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ شاید کورونا کی کوئی ویکسین جو ہے جلد یا دیر کے بعد دنیا میں آ جائے، کورونا کا علاج ہو جائے، لیکن یاد رکھیے موت پھر بھی دنیا میں آئے گی، اور وہ لوگ جو کورونا کی ویکسین سے ہیل بھی ہو جائیں گے وہ پھر بھی کچھ عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد پھر سے مریں گے۔ موت سے چھٹکارا انہیں نہیں ملے گا۔ کورونا کی ویکسین تو شاید دنیا میں آ جائے، لیکن موت کی ویکسین دنیا میں نہیں ہے۔ موت جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی تاریخ جو ہے بڑی قدیم ہے، اور یہ موت جو ہے یہ دنیا میں کورونا کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ اس نے تمام خاص و عام کو، شاہ سے لے کے گدھا تک کو اپنا شکار بنایا ہے۔ اور یہ موت جو ہے یہ ایک خاص وائرس کے ذریعے سے دنیا میں آئی ہے، اور یہ وائرس کورونا نہیں ہے، یہ وائرس کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس وائرس کا نام جو ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ زمین پر آنے سے پیشتر آسمان میں موجود تھا، اور یہ وائرس جو گناہ کا ہے یہ پہلے فرشتوں میں آیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے جو فیلن اینجلز ہیں، جو گرائے گئے فرشتے ہیں، ان میں سے، ان کے ذریعے سے یہ دنیا میں آیا، اور عدن میں شیطان کے ذریعے سے، ابلیس کے ذریعے سے، اس کے ایک ایجنٹ سانپ کے ذریعے سے انسانی رگوں میں داخل ہوا، اور پھر اس نے لوگوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ خدا نے وارن کیا تھا انسان کو کہ وہ گناہ نہ کرے، اسے منع کیا تھا نافرمانی نہ کرے، اور یہ وارن کیا تھا کہ اگر اس نے شجر مومنوا درخت کے پھل کو کھایا تو جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یوں گناہ کا جو وائرس ہے یہ دنیا میں آیا، اور موت جو ہے وہ نسل انسانی میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے فزیشنز نے بیماریوں کا حل ڈھونڈا ہے۔ بڑی بڑی لیبارٹریز میں، دنیا کی نامی گرامی لیبارٹریز میں جو ہے وہ بیماریوں
की वैक्सीन तैयार हुई है, कुछ की वैक्सीन तैयार भी नहीं हुई है। आप एड्स को देख लें, आज तक उसके वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। लोग आज भी एड्स के जरिए से मर रहे हैं, लोग आज भी और बीमारियों से मर रहे हैं। दुनिया में शायद कोरोना का कोई इलाज आ जाए, लेकिन याद रखिए, मौत का दुनिया के किसी लेबॉरेटरी में कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, ना हो सकता है, ना कोई उसकी वैक्सीन जो है वो तैयार कर सकता है। मौत की वैक्सीन जो है वो इलाही लेबॉरेटरी में तैयार हुई है, और ये लेबॉरेटरी जो है ये कोहे कलवरी पे जो है वो वहां पे लगाई गई, और वहां पे ये लेबॉरेटरी जो है, इस लेबॉरेटरी में जो है वो यीशु मसीह के जरिए से एक ऐसी वैक्सीन तैयार की गई है जो मौत पे गालिब आती है, और ये वैक्सीन यीशु मसीह का लहू है। ये वैक्सीन जो है ये खुदा की तरफ से इंसान के लिए है, इंसान की भलाई के लिए है, इंसान की जिंदगी के लिए है। कोई दुनिया की लेबॉरेटरी, बड़े से बड़ा फिजिशियन, बड़े से बड़ा मेडिसिन का डॉक्टर, बड़े सी बड़ी लेबॉरेटरी जो है वो मौत की वैक्सीन को तैयार नहीं कर सकती। याद रखिए, मौत का एक ही वायरस है, उस वायरस का नाम जो है वो गुनाह है, और गुनाह से कोई नहीं छोड़ा सकता मां सिवाय यीशु अल मसीह के। वो दुनिया में इसीलिए आया। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जीसो, ये वैक्सीन जो है ये खुदा ने पेशतर से तैयार कर रखी है। खुदा को पता था कि इंसान जो है वो गुनाह में गिर जाएगा। खुदा को पता था कि इंसान जो है वो बीमारी में, गुनाह की बीमारी में गिरने के सबब से मौत को पाएगा। चुनाचे खुदा ने इसका एहतमाम जो है वो बनाए आलम से पेशतर से कर दिया, और बर्रा जो है वो दुनिया बनने से पेशतर, आलम बनने से पेशतर जो है इस काम के लिए खुदा का बर्रा, खुदा का कलमा यीशु मसीह जो है वो मखसूस कर दिया गया। आप बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा पा सकते हैं, वैक्सीन के जरिए से शिफा पा सकते हैं, मफौकुल फितरत तरीके से शिफा आपको मिल सकती है, लेकिन मौत, इसकी कोई वैक्सीन दुनिया में मौजूद नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये फकत और फकत खुदा के बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लाने से हमें मिलती है। कोई कलवरी पे जो वैक्सीन तैयार की गई है, इसके लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ता, अपनी बारी का इंतजार करना नहीं पड़ता, लाइन में लगना नहीं पड़ता। जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, ये वैक्सीन जो है आपकी रगों में इंजेक्ट हो जाती है इलाही तरीके से, मफौकुल फितरत तरीके से। यीशु मसीह का लहू जो है वो आपके अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, आपकी रगों में दौड़ना शुरू कर देता है, और फिर गुनाह के इस जरासूमी को, इस वायरस को किल कर देता है, जो मौत दुनिया में लाने का, जिंदगी में लाने का सबब है, वसीला है। और इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, इसके लिए आपको कोई रकम आपके अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से लगानी नहीं पड़ती। ये वैक्सीन जो है ये मुफ्त है। इस वैक्सीन के लिए हमें ना तो इंतजार करना पड़ता है, ना अपनी बारी के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है, बल्कि ये हमें फौरन मिल जाती है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो ये वैक्सीन जो है ये हमें मुफ्त मिल जाती है, और हमारे बदनों में रूह कुद्स के वसीले से इंजेक्ट कर दी जाती है, और फिर हमारे अंदर से जहरीले जरासीम सिन का खात्मा होता है, मौत का
खात्मा होता है। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में, और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, बनी इसराइल ने बियाबान में खुदा के खिलाफ बातें की, खुदा के बंदे मूसा के खिलाफ बातें की, तो उनमें मौत आई आतिशी सांपों के जरिए से। और जब वो ताइब हुए तब खुदा ने इंतजाम किया, मूसा से कहा पीतल का सांप ले, उसे बल्ली पर लटका, और जो कोई इसको देखेगा वो शिफा पाएगा, वो मौत से बच जाएगा। ऐसे ही अजीजों, हम सब नाफरमान हैं, सब ने गुनाह किया है, कोई भी उसकी नजर में पाक नहीं है, और सबकी रगों में एक ऐसी सांप का जहर दौड़ रहा है जिसे हम इब्लीस और शैतान कहते हैं। और वो जहर जो है वो मौत को पैदा कर रहा है, और इस जहर का कोई तर्याक दुनिया में नहीं है, इसका तर्याक एक ही है, और वो यीशु मसीह है। तो आज गुड फ्राइडे के दिन हमारा यीशु मसीह जो है वो लकड़ी पर लटकाया गया, ताकि जो कोई उसे देखे, सूली पर लटके हुए नासरी को देखे, मसीहा को देखे, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन के वसीले से ये जिंदगी जो है ये उसके बड़े फजल से हमारे लिए मुफ्त है। आए यीशु मसीह को तकें, यीशु मसीह पर निगाह करें, जो आपके लिए मेरे लिए सलीब पर झूल गया, और उसी के सलीब पर लटकने के सबब से, उसके सलीब पर जान देने के सबब से, उसकी लहू की बदौलत आज हमें वो वैक्सीन मिल जाती है जो मौत का इलाज है। बाकी दुनिया में मौत का कोई इलाज नहीं है, और किसी के वसीले से नजात नहीं है। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे, और आप यीशु मसीह की ज़ात में तरक्की करें, और उसकी शख्सियत में रोज़ बरोज़ ढलते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।